Namaskar, I'm Ashok Vyas, and I have a distinct pleasure and honor of sitting with someone who, first of all, I should convey my pranams to Ishan ji. And Ishan Shivanand ji is Shivacharya. He's a professor of mental health and researcher. But beyond these words, there is something that he shares with love and joy. And in the age where we have started having a lot of impatience, he manages to teach how to be patient with yourself and how to fill your lives with joy. And that he has learnt at the feet of his guru and father, Babaji. So we will talk about guru also. But Ishanji, as I look at you and I see that there are visible impressions of fresh 3,500 something miles of journey. Basically, you have seen America freshly right now as you have reached here in New York. So let us go with you. How was the journey? Very nice. It reminded me of India so much because India is also like America. There are metropolitans, there are population pockets, and then there are lots of vast areas of nothing but rural population. India also has mountains and deserts and snow and a variety of geographical conditions. In fact, every single geographical condition that you can find on the planet. And the same is with North America as well. And even the people, I found that just like India, the people who are in metropolitan are more towards a very leisure and luxury lifestyle, whereas the people in the rural communities are more towards faith, family, and balance. And the similarities were amazing. So I think when people think about different countries, we generally tend to focus upon the differences, whereas if we start to focus upon the similarities, we will find that there is so much more that we have in common. So as a yogi not only looks at the similarities or finds where we resonate as one human family. This place, as we speak, while we observe 4th July, we talk about America's independence, and we many times look at word independence as synonymous with freedom. And politically speaking, that is the case. So this is also referred to as land of the free. But actually, as individuals, we find that we have a lot of things which are tying us, which are like bondage. And being a professor of mental health, who would know better about how people get into the dark phase and feel frustrated, etc. So talk to me about, are we really free? The phrase actually is land of the free, home of the brave. Correct. Freedom without the brave is unattainable. So yesterday when I was driving, we stopped at a Dunkin' Donut and I was fortunate enough to meet a World War II veteran. And the gentleman was 97 years old. He was stationed on the USS Texas and his ship was attacked 3 times. And he had such wonderful stories of survival, and his whole family was there and they were dressed in the paraphernalia of red, white and blue. They were so proud. His second generation had also served. So a country becomes what it becomes because of the brave that serve and uphold the values of the country. Upholding the values makes a brave person have purpose, and purpose brings mental health. If you take any being and you just give them luxury after luxury and you take away the purpose, then sickness will come. May that sickness be physical, may it be mental, may it be emotional. We are beings that are driven. And I think
it is a right to have freedom, but we should also learn to respect and value freedom by giving ourselves the purpose to understand, acknowledge, and uphold that which has been given to us, lest it be taken to us if we become complacent. So yes, I do believe that land of the free, home of the brave, because it is the brave who make it free. Beautifully put. So, land of the free and home of the brave. But who is brave? That is the question we are not addressing right now. Because I want to address the question of purpose. Now, as those of you who are following him on Instagram must have heard as he was driving and he was sharing some of his innermost learnings and experience of his new car, and driving with Babaji to first Shimla and a couple of other places. And so let me request you to share the purpose as it is conveyed to you by Babaji. Many fathers fail to do that. And then let's not get why they fail, but let's talk about how one generation succeeds in first learning and conveying the purpose of life. So I would like to say three things that worked with me, because I am also a father now and I use the same principles in my life. First of all is investment. If we don't invest time with our children, because I saw the North American lifestyle. The North American lifestyle is you work 9 to 5. So the child goes to school, after that he goes to daycare. After that you come back home, the child comes back home, you are tired, the child's tired, everybody gets into their own recreational activities, and then life goes on. The child grows up in a system, grows up with third parties. And then one fine day you come and you try to take possession of the child by saying that you must listen to me because I am your father. You just have a genetic right. It's a right given to you by nature, but have you earned the right to be called a father? Have you invested the time with your child? And it does take a lot of effort, because in North America, there is so much that we have to do. In India, we were spoiled. I remember the first time when we talk about cars. In India, there is a way things are done. When I was driving in North America, I did not even know how to put fuel in the car, because we don't do all these things in India. So I'm coming out and I'm looking at the 3 buttons. I don't know what it means. 80, 87, 91, 93. It's just Greek, Roman, Latin to me. And all these things you have to do yourself. अपने खुद के शीशे साफ कर रहे हैं, मैं अपने खुद के शीशे साफ कर रहा हूँ, मेरी बीवी मेरी फ़ोटो निकाल रही है, क्योंकि इंडिया में तो ये सब हमने कभी किया ही नहीं. और यहाँ पे सब कुछ आप खुद करते हो. और उसके बीच अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चों पे आपको समय भी व्यतीत करना है, सुनने में कष्टदायक लग सकता है, लेकिन फिर हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि हम चाहते क्या हैं. तो सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि हमें अपने बच्चों के साथ मैत्री बनानी है, उसके लिए समय व्यतीत करना होगा. Just like you spend money to buy something, in the same way you invest time to develop a bonding with the child. That's the first thing. The second thing is role model. Why I listened to my father was because I saw him being good at things that I aspire to be good at. So he was an excellent sportsman. He was a fantastic boxer. And when I would see him box, I valued that, because I saw him to have skills that I needed to learn. So I went to him to get those skills. And the third thing that I really, really liked about my father was he practiced what he preached. Honesty. So the first is investment, the second is be a role model, and the third is honesty. Many times I see fathers, they do one thing. They'll be having a smoke and telling your child not to smoke. Then the child starts to register that he lies. He says one thing and then he does another. A child acts out
in school, comes back home, and the father says there's a way you have to behave, and then the same father abuses the mother in front of the child. So a dishonest person cannot expect for the child to respect, learn, and listen. So we have to bring that honesty, we have to be that role model, and of course investment. And once that is done, then the bond is made, then there is a friendship, then there is a camaraderie. And that's what I think I had with my father. I had camaraderie, and I think that's what everybody wants. I think that camaraderie we can also refer to as love. तो आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, और कैसे ये हुआ कि भाई ये जीवन साथी मेरे लिए उचित? जी, शादी तो अरेंज हुई, लेकिन लव भी फिर हो ही गया, क्योंकि आश्रम से निकले थे तो जब हमारे गुरु पिता ने कहा कि आपको शादी करनी है, पहले बड़ा घबराए क्योंकि मात्र 20 साल के थे और 21 के होने वाले थे। 21 जो है वो कानूनी उम्र होती है जब आप शादी कर सकते हैं। तो जुलाई में हम 21 के होने वाले थे, जनवरी में आए, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी होगी। और भारत में एक प्रथा है, पिताजी मिर्च लगाते हैं, माताजी बाम लगाती हैं। तो जब गुरुदेव ने कहा तुम्हारी शादी होगी, हम सकपका गए पीछे से, माँ बेटा तेरे पिता जबान दे आए हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, अब उनकी मूंछ का सवाल है, अब तो शादी करनी पड़ेगी। और उसी समय हम मूर्छित हो गए। और ये सच बात है, हम सही में, हमें दिखा कि ऐसे सब गोल गोल घूम रहा है, और अच्छे सुडौल थे हम, ताकतवर थे, और शादी की बात सुन के हमें भी लगा हे राम दम, हम भी गिर गए। फिर बड़े सहम गए कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम अपने पिताजी के पास गए कि पिताजी क्या गारंटी है कि हम खुश रहेंगे। और उस समय एक विज्ञापन आ रहा था दूरभाष पे, टेलीविज़न पर, और वो विज्ञापन पे था फलानी बैटरी 20 साल की वारंटी। बाबा जी कहते तुम्हें वारंटी चाहिए तो तुम बैटरी से शादी कर लो, 20 साल की मिलेगी, 20 साल तक वो चलेगी। लेकिन याद रखना वारंटी भी मैन्युफैक्चर डिफेक्ट की होती है। अगर तुम बैटरी पे जाके पानी फेंक दोगे तो फिर वारंटी का कुछ नहीं लेना देना। तुम रोलेक्स खरीद के लाते हो, 100 साल की वारंटी होती है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की। अगर तुम रोलेक्स पे हथौड़ा जाके मार दोगे और रोलेक्स वाले पे जाओगे भाई घड़ी बदल दे, तो वो आपको भगा देगा कि जी आपने तोड़ी है। तो नौजवान कहते हैं कि हमें वारंटी चाहिए कि हमारी शादी अच्छी चलेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी मिल भी जाए, लेकिन अगर आप ही घड़ी तोड़ दें उसका क्या? ऐसे में कितने सारे लोगों को जानता हूं जो एक सभ्य महिला अपने घर लाते हैं लेकिन फिर जंगलियों की तरह पेश आते हैं। और जो इंसान है उसको तो विकसित होना ही पड़ता है। अ मैन हैज टू इवॉल्व। सो इफ यू थ्रो अ पर्सन इन द जंगल टू इवॉल्व एंड सर्वाइव, दे विल बिकम टार्जन. So a poor nice girl comes into a house and the house is filled with junglis, and after some time she also becomes then you say that you know what the hell happened, कितनी अच्छी थी, कितनी सभ्य थी, आई और अब ऐसी हो गई। जरूर इसकी माँ ने सिखा के भेजा है, भैया तुम्हारी एनवायरनमेंट ऐसी थी। So you can't always go towards manufacturing defect. Somewhere it comes down to personal responsibility. And when my guru explained to me in that manner that, oh, it is about how good you will make it, that is how good the marriage will be, फिर हमें भी लगा कि जी बात तो सही कह रहे हैं। तो हम थोड़े फ्लेक्सिबल हुए, हमने अपनी सोच बदली और हमने कहा कि चलो हम भी अच्छा करेंगे। फिर जब पहली बार देखा अपनी धर्मपत्नी को, तो फिर जब देखा तो फिर तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए कि पसंद अच्छी ही थी। क्योंकि देखिए जब आप सीधा ही प्रेम में पड़ जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि फिर आप अपने स्वादिष्ठान से सोच रहे हैं, आप अपने ससुराल से नहीं सोचते। तब फिर हिंदी पिक्चर ने जो सिखाया कि जी सब चल जाएगा, सब अच्छा होगा, प्रेम में हम शादी कर लेते हैं, हम तो स्वादिष्ठान से सोच रहे हैं। और फिर तर्क बाद में आना शुरू होता है कि ये क्या कांड कर लिया हमने। लेकिन जब माता पिता भी थे जुड़े हुए
और माता पिता ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, उन्होंने स्त्री को देखा, उन्होंने बच्ची को देखा, उन्होंने घर वालों को देखा. सो दे वर वेरी कॉग्निटिव अबाउट अ डिसीजन. Just like when businessmen do a decision, they think, they plan that it is a very good decision, it's logical, these children have excellent compatibility, so let's get them together and let's see where it can go. So there was emotion also involved, but there was logic also involved. And I think that logic aspect is very, very important. And that's why in India, the marriages were always, it was a whole community affair. एंड अभी आप देख लीजिए 13 साल हो गए मेरी शादी को, बड़ी अच्छी चल रही है. और जहाँ आप एक फैमिली कंपोनेंट शादी से हटा देते हैं, एक कल्चर शादी से हटा देते हैं, एक धर्म और सनातन शादी से हटा देते हैं और आप कहते हैं कि बस हम तो बस स्वादिष्ठान से सोच के शादी करेंगे, फिर आप देख लीजिए ऑल मैरिजेस में से 50% लीड टू डिवोर्स. फिर बड़ी समस्या होती. सो व्हाट वर्क्स, we have to study that also. So what works, in what cultures it works, we have to study that also. And if we can replicate forms of that can suit our current scientific sensibilities, then that is the recipe of success. But if we say that नहीं, हम तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, हम तो कुछ नहीं करने वाले, है ना, ये तो हम ही करेंगे, तो फिर मतलब if it's a successful model, why not यूटिलाइज इट. तो देखो जी, मेरा तो ज़्यादा दिमाग लगा नहीं था शादी में, हमारे गुरु का बहुत ज़्यादा दिमाग लगा था और मैं रोज़ रोज़ उनका धन्यवाद करता हूँ. व्हेन एवरी डे आई वेक अप, आई एम विद समबडी हु टेक्स केयर ऑफ मी एंड शी हैज़ गिवन मी 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन एंड शी टेक्स केयर ऑफ देम. एंड और बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे किसी के सामने आते हैं और उनको बड़े सारे स्तोत्र और स्तुतियाँ कंठस्थ होती हैं और फिर सब मुस्कुराते और कहते हैं ये तो बाबा जी का पोता है इसलिए इसको कंठस्थ है. लेकिन अगर सच बोला जाए, बाबा जी और मेरा ज़्यादा हाथ नहीं है, ज़्यादा हाथ तो मेरी धर्मपत्नी का है, क्योंकि जितना कल्चर बच्चों में आया वो उसी से तो आया है. और अभी जब हम कहते हैं कि बच्चों में मेंटल हेल्थ की कमी है, क्यों? क्योंकि कोई बच्चों को दिशा नहीं दे रहा. और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस एक कल्चर में मैं हूँ वहाँ पे the children have that option of stability, and I'm very happy the systems that I was raised in, that I have a happy married life. Yes. Congratulations. and हम बहुत प्रसन्न हैं और आपको बहुत आभार है, आपने इतना खुलकर इस बात को बताया कि आप कैसे मंत्रमुग्ध हो गए थे. वो क्षण भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा और अभी स्टेबिलिटी की बात भी आई. स्टेबिलिटी को लेते हुए जो जीवन में एक स्थायित्व रहने की दृष्टि से गुरु का योगदान होता है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ कुछ ऐसा लगा आपको कि संयोग से हुआ है, फिर बाबा जी के साथ आप किसी ऐसे स्थान पर पहुँच गए जहाँ किसी को कुछ लाभ मिलना था उनकी सन्निधि से, चाहे वो बॉर्डर की बात हो या किसी सुदूर स्थल की बात हो. तो गुरु का जो हमारे जीवन में महत्व है उसके बारे में आप अपने अनुभव से भी बताएं, और आप स्वयं भी गुरु रूप में हैं. तो जो गुरु के साथ संबंध है, तो शिष्य के भीतर क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि वो गुरु को पहचाने और जो गुरु दे रहे हैं उसको लेने की उसकी पात्रता बढ़े? सबसे पहले तो हमें गुरु स्वरूप को समझना होगा. अगर हम आदि गुरु को देखते हैं तो वो है भगवान दक्षिणामूर्ति, महादेव का स्वरूप, जिनसे दुनिया का सभी ज्ञान उत्पन्न हुआ, संसार का. और भगवान दक्षिणामूर्ति ज्ञान दे रहे हैं, उनके सामने सप्तऋषि सर झुकाए खड़े हैं. और भगवान दक्षिणामूर्ति वीर मुद्रा में बैठे हैं. तो जिस मुद्रा में अभी मैं बैठा हूँ वो वीर मुद्रा है. एक पैर इस प्रकार से और एक पैर नीचे, और उन पैर के नीचे भगवान दक्षिणामूर्ति के अपस्मार है. अपस्मार का मतलब एक बहुत ही भयानक, क्रूर दिखने वाला दानव. अब वो जो अपस्मार है वो अमर है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती.
और वो दर्शाता है हमारे भीतर के व्यसन को, संस्कारों को, वासनाओं को। दक्षिणामूर्ति उस असुर को संभाले बैठे, रोके बैठे। ज्ञान उस असुर को रोकता है। अब आप देखो, जब मैं भी डंकिन डोनट जाता हूं तो मेरा भी मन करता है कि 6 की जगह 12 डोनट खरीद लूं, क्योंकि मेरा जो व्यसन है, मेरी जो जिव्या है, वो तो मुझे बोलेगी कि भैया सुपर साइज करो। और ये तो अमेरिका है, यहां तो पॉपकॉर्न वाले में भी कहते हैं 50 सेंट में क्या आप सुपर साइज करेंगे। कोल्ड ड्रिंक वाले भी कहते हैं क्या आप सुपर साइज करेंगे। तो हर जगह जो प्रलोभन है वो तो मुझे यही कहेंगे कि 6 की जगह 12 खा लो, 12 की जगह 22 खा लो, 24 खा लो। तो अगर मेरे भीतर ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वही ज्ञान फिर मेरे हाथ को रोकता है कि रुक जाओ, ये चीज सही नहीं है। वही ज्ञान दक्षिणामूर्ति है जो अपस्मार के ऊपर बैठा है। और जहां ये ज्ञान को आप सोसाइटी से हटा दोगे तो अपस्मार तांडव करेगा और महाप्रलय होगी। इट इज दैट नॉलेज दैट कीप्स अस सिविल, knowledge that keeps us civil. And you take away that knowledge, you take away those boundaries, and you look at people, the way they behave, it is a very barbaric manner. If you look at the olden times, if you look at the Greek culture, if you look at Roman culture, there were always the boundaries of civilization, and outside the civilizations were barbarians. And what makes a civilization civilized is the transfer of knowledge. The knowledge that explains to us, guides us, teaches us, controls us, helps us overpower the apasmar. And that is why we need a guru in our life. A guru जो हमें सिखाए कि किस तरीके से उस अपस्मार को हम नीचे रखें। तो इसलिए जब हम भगवान दक्षिणामूर्ति से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ। मतलब हे भगवान, मेरे भीतर ज्ञान को जागृत करो, मेरे भीतर अवेकन द नॉलेज एंड अवेयरनेस। Because if I do not have the knowledge and awareness, then I will be like a boat without a rudder, a car without a steering wheel. I will just go anywhere. And if I go anywhere, if I don't stand for something, I will fall for everything. Today, if you look at the world, they are sick under the chaos of the apasmar. They don't know what to do. And if you look at anybody's Google search, it is just frantic search for answers. Frantic search for knowledge. What should I do with my life? What should I do with my profession? What should I do? I don't know. I don't have any guidance. What should I do with my food? What should I do in my religion? I don't feel that I belong in the chaos that I see. I can't find my faith. I've become purposeless. And then there are the mental health issues, the chaos. Why? Because अपस्मार ने इतना तांडव कर दिया, और उसी अपस्मार के तांडव को हम कहते हैं कि अब हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए। अब हमें बाइपोलर आ गया, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई, इंसोम्निया आ गया, कि हम तो चैन से सोना चाहते हैं लेकिन अपस्मार हमें सोने नहीं देता। वही चिंताएं बार बार तांडव करती हैं। और क्यों तांडव कर रही हैं? क्योंकि हमारे जीवन में वो दक्षिणामूर्ति है ही नहीं, वो गुरु और शिव है ही नहीं जो उस अपस्मार को अपने पैर के नीचे दबा सके। आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति धार्मिक है उसको चिंता नहीं होती? उसको होती है, लेकिन भीतर का महादेव कहता है शिव अनंत, शिव कृपा अनंत। समस्या नहीं है। मैं एक वेटरन के साथ काम कर रहा था, और उस वेटरन को कभी कभार पीटीएसडी के एपिसोड्स आते थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बिकॉज जब वो पोस्ट 9/11 डिप्लॉय हुआ था तो जो जो उसने देखा वो उसके अंदर रह गया, और उसको बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसको नाइट ट्रेमर्स आ रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही, उसको पसीने आ रहे हैं, उसको चिंताएं हो रही हैं कि भैया ये क्या है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई एम आई एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस। एंड ही डिड एवरीथिंग दैट ही वाज सपोज्ड टू। उसने अपने धर्म का पालन किया, वो डिप्लॉय हुआ,
और उसने मेहनत की, लेकिन जब वो वापस आया तो इतने सारे भार को अपस मार के तांडव को लेकर के आया। और फिर उसने मुझसे योग सीखा, उसने साधना सीखी। और एक दिन वो मुझसे बात कर रहा था और उसने कहा कि देख ईशान, ऐसा नहीं है कि अपस्मार का तांडव अब नहीं होता, अभी भी वो भाव ऊपर आते हैं, लेकिन अब दो चीजों में बदलाव है। पहला, अब जब वो तांडव मेरे भीतर उत्पन्न होने वाला होता है तो मेरे पास अवेयरनेस है, प्रज्ञाम मेधाम प्रज्ञान प्रयच्छ, अवेयरनेस है कि वो एक चीज आ रही है। और फिर मेधाम, नॉलेज है कि अगर वो चीज आ रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको सरप्रेस कैसे करना है, मुझे फोकस कैसे होना है। और पहले जैसे जब वो पीटीएसडी प्रबल होता था तो मुझे हफ्ते लग जाते थे, महीनों लग जाते थे और मैं उस चीज से उभर नहीं पाता था। अब कुछ ही घंटों में, क्योंकि मेरे पास मेधाम भी है, प्रज्ञाम भी है, अवेयरनेस भी है, नॉलेज भी है, मैं उस चीज को समझता हूं और मैं उस चीज को सरप्रेस कर सकता हूं। सो द गुरु तत्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हेल्प्स अस सप्रेस दोज earthly faults. It is that discipline. And we need that discipline. अगर आप बुशिडो पढ़ते हैं, वॉरियर्स कोड पढ़ते हैं, वो भी यही बात करता है कि देखो, you need those principles, you need those values, you need that guru tattva in your life. And even a warrior feels fear. Even a warrior feels anxiety. But he has Dakshina Murti to sit in Veerasana and put that apasmar down and do what's supposed to be done. तो अगर आप मुझसे पूछते हैं गुरु का क्या महत्व है, मैं आपको यही बोलूंगा कि गुरु इज द साइकोलॉजिकल मेडिसिन. Just like we have physical medicines, we need physical nutrition. And if we don't have that, then we will be malnourished. And malnourished होने से फिर बड़ी बीमारियां हैं. फिर आपको बेरी है, आपको स्कर्वी है, आपको malnutrition है, आपको थायराइड गॉइटर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. उसी तरीके से अगर साइकोलॉजिकल मेडिसिन नहीं है, गुरु नहीं है, तो फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है. और जहाँ पे फिर हम वो विटामिन सी लेते हैं ताकि मेल न्यूट्रिशन की समस्या ना हो, हम अपने जीवन में गुरु लेकर के आते हैं ताकि मानसिक असंतुलन ना हो, ताकि हमें एक स्थिरता मिल सके, हमें एक शक्ति मिल सके. और वही भगवान दक्षिणामूर्ति महादेव से हमें सप्तऋषि मिले, वहीं से हमें शिवयोग परंपरा मिली, और उसी से हमें मेरे गुरु मिले अवधूत शिवानंद, और उसी परंपरा पे मैं चलता हूँ. बहुत सारा धन्यवाद आपका करने के साथ साथ पहले तो आपके साथ आपके गुरुजी जिनकी कृपा से बहुत सारे शिव योगी और जो श्रद्धा से उनको श्रवण करते हैं उनको दिशा मिलती है. आपका धन्यवाद इसलिए भी कि आपने इतनी उदारता से, और जब कोई बात पचकर आती है, जब ज्ञान इस तरह से प्रकट होता है जैसा कि ईशान जी के मुख से होता है, तो वो रिलेटेबल हो जाता है. सो इट एम्पावर्स अस. एंड आई थिंक ये वाला भी जो अपस्मार को दबाने वाला जो उदाहरण आपने दिया है, ये भी एम्पावर करने वाला है, क्योंकि हमें से कई लोग किन बातों को कैसे देखते हैं और कहाँ वो क्लिक हो जाती है. वो क्लिक होने वाली जो अगर हम कहें शक्ति है, वो आपके अंदर आपके गुरु जी की कृपा से जो आई है, वो हमारे कुछ दर्शकों तक भी निश्चित रूप से इस संवाद के माध्यम से भी पहुंची है. मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, इसलिए मैं तो कोशिश नहीं करूँगा. लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करूँगा चलते चलते कि कोई ऐसा मंत्र होगा जो आप अकेले में होंगे तो आप अपने आनंद को कई गुना अनुभव करने के लिए अगर ऐसे सहज रूप से उच्चारित करते होंगे, या कोई ऐसा मंत्र जिसके साथ हम समापन की तरफ अपने महादेव. एक गुरु आपको अपने इष्ट से जोड़ेगा, प्रेम करना सिखाएगा. गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए. तो इसलिए मंत्रों के पीछे मत भागना, गुरु के पीछे भागना, और फिर सब कुछ मिल जाएगा. ब्लेस यू. बाबा जी को पुनः श्रद्धा के साथ स्मरण, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आभार. आप सभी को शुभकामनाएं. अशोक व्यास को अनुमति दें.